Hello students, this is Rasmita Singh. In this video, we will complete all exercises of Unit 2, Chapter 1, I am lucky from class 2nd English Marigold. So let's we start. Answer the following questions. First question is, for what the girl would be thankful if she were a manna? जो पोएम में लड़की है वो अगर मैना होती तो वो किस बात के लिए थैंकफुल होती? Answer is, if she were manna, she thankful for her singing. Okay, next question is question number 2. What would the girl want to do if she were an elephant? अगर वो लड़की हाथी होती तो वो क्या करना चाहती? तो आंसर is, if she were an elephant, she wanted to raise her trunk. Third question is, what would the girl want to try if she were a kangaroo? अगर वो कंगारू होती तो वो क्या करना चाहती, क्या करने की कोशिश करती? तो आंसर इज, द गर्ल वांटेड टू होप if she were a kangaroo. Question fourth is, what do the butterflies have? बटरफ्लाइज के पास क्या है? So answer is, the butterflies have wings. Okay. Question number 2. Read the given lines and answer the questions that follow. नीचे कुछ लाइंस दी हुई हैं, कुछ वो एक्सटेंजास दिए हुए हैं पोएम के जिन्हें आपको पढ़ना है. उसके बेसिस पर नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिन्हें करना है. ओके, सो स्टेंजा मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको. इफ आई वर एन एलिफेंट आई वुड बी थैंकफुल that I can raise my trunk. If I were a kangaroo, I would try to hop right up to the moon. If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. ओके, मैंने लाइन पढ़ दी है, स्टेंजा पढ़ दिया है. क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द गिवन स्टेंजा हु हैज 8 आर्म्स? जो ऊपर एक्सटेंजा दिया हुआ है, स्टेंजा दिया हुआ है, उसमें 8 आर्म्स किसके पास है? सो आंसर इज, एन ऑक्टोपस हैज 8 आर्म्स. सेकेंड क्वेश्चन इज, विच एनिमल हैज अ ट्रंक? किस एनिमल के सूंड होती है? सो आंसर इज, an elephant has a trunk. Next question is question number 3. Write at least 3 rhyming words of hope. यहाँ पे आपको 3 rhyming words लिखने हैं hope के. ओके, so answer is top, crop, sock, pop. Fourth question is, write the similar meaning of the word thankful. यहाँ पे आपको thankful से मिलता जुलता मतलब वाला मीनिंग लिखना है. ठीक है, so first is grateful and second is pleased. Question number 3. Next question is question number 3. Choose the correct option and fill in the blanks. सही विकल्प चुनना है और ब्लैंक को फिल करना है. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में ब्लैंक को फिल करना है. तो फर्स्ट इज, द मैना इज थैंकफुल फॉर डैश. ऑप्शन ए 8 आर्म्स, ऑप्शन बी ट्रंक, ऑप्शन सी सिंग, ऑल ऑफ ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन सी स्वीट वॉइस लिखा है, जिसको मैंने काट के पेन से सिंग लिखा है, क्योंकि स्वीट वॉइस मैना की नहीं कुकू की होती है, कोयल की होती है, इसलिए. ओके, और आपके इस पोएम में मैना जो है अपने सिंगिंग के लिए थैंकफुल है. सो दैट्स व्हाई आई एम हियर राइटिंग सिंग ऑल्सो. तो प्लीज़ आप भी ये चेंज कर लीजिएगा, ऑप्शन सी स्वीट वॉइस की जगह सिंग कीजिएगा. ओके, and answer is option C, sing. The manna is thankful for sing. Second is, the kangaroo is thankful to be able to dash. कंगारू थैंकफुल किस लिए है भाई? सो ऑप्शन ए raise his trunk, ऑप्शन बी hope,
Option C, sing. Option D, giggle. Option B. Answer is option B, hope. Third is the octopus is thankful for 8 arms. ओके मैंने आंसर तो बोल ही दिया. तो ऑप्शन सी 8 arms. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू है तो T लिखेंगे और अगर फॉल्स है तो F लिखेंगे. ओके. सो फर्स्ट इज द फिश कैन wriggle and giggle with glee. This is true. Okay, true. Second is the octopus is thankful for its 6 legs. This is false. Okay. Third is the butterfly is thankful for her wings. This is true. Fourth is the elephant wished to try to hop right up to the moon. This is false. Okay. So next is grammar skill. First question is in this grammar skill is put commas, full stops and capital letters at proper place and rewrite the sentence in the given space. नीचे आपको जो सेंटेंस दिया है वो इनकरेक्ट है, मतलब उसमें मिसिंग है, जैसे कि फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए, बीच में अगर 2-3 वर्ड एक जैसे एक कैटेगरी के आ रहे हैं तो उनके बीच में कॉमा लगाना चाहिए. एंड लास्ट में क्वेश्चन अगर सिंपल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप और अगर क्वेश्चन सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए. ओके. सो लेट वी स्टार्ट. फर्स्ट इज दीपक इज गोइंग टू दिल्ली टुडे. हियर दीपक एंड दिल्ली दोनों ही प्रॉपर नाउन है. प्रॉपर नाउन है इस मीन दोनों जो आपके वर्ड हैं दोनों के वर्ड के फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होंगे. दीपक का डी कैपिटल होगा और दिल्ली का डी कैपिटल होगा. ओके. तो दोबारा लिखेंगे हम. दीपक इज गोइंग टू दिल्ली टुडे, फुल स्टॉप. सेकेंड इज व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस मैटर. ओके. तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है व्हाट का जो है फर्स्ट लेटर W कैपिटल होगा. फुल सेंटेंस आप ऐसे लिख देंगे बिकॉज इधर कुछ और नहीं है ऐसा जिसमें हम कैपिटल लेटर या कॉमा लगाएं. सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस मैटर. सेंटेंस को पढ़ते ही पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन सेंटेंस है, इसलिए हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. ओके. थर्ड इज माई फेवरेट डिशेज आर राइस करी एंड कर्ड. सो फर्स्ट लेटर ऑफ माई इज कैपिटल लिखेंगे. माई फेवरेट डिशेज आर राइस कॉमा curry and curd, full stop. Okay. Next is fourth, do not make a noise. Here we do का फर्स्ट लेटर D कैपिटल होगा. do not make a noise लिखने के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे. ओके. फिफ्थ इज distribute this apple among Ramu, Shyam and Deepa. Here distribute का D फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. दिस एप्पल अमोंग रामू का R कैपिटल होगा. रामू लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे. श्याम लिखेंगे, श्याम का S कैपिटल होगा. एंड दीपा का भी फर्स्ट लेटर D कैपिटल होगा. एंड लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. Join 2 words and make new compound word of the following. यहाँ पे बहुत सारे नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं जिस पर प्लस का साइन भी लग रहा है, आप देख ही रहे हैं. सो इनको जो है दो अलग अलग वर्ड को हम कंबाइन करके लिखेंगे, कंपाउंड वर्ड बनाएंगे. ओके. तो फर्स्ट इज सन प्लस ग्लास. सन मीन्स सूरज, ग्लास मीन्स कांच, और जब हम दोनों को साथ में लिखेंगे सन ग्लास, इट मीन्स धूप वाला चश्मा. ओके. जो धूप में पहनते हैं सन ग्लासेस. सेकेंड इज स्नो प्लस फ्लैग. स्नो मीन्स बर्फ जो पड़ती है ना, हल्की हाथों में बिल्कुल मसल जाती है हल्की हल्की सी. एंड फ्लैग मीन्स बर्फ का टुकड़ा, परत होना, मतलब मान ली बर्फ पड़ रही है, पड़ते पड़ते एकदम परत सी जम गई है किसी भी चीज़ की परत. ओके.
जब हम दोनों को साथ में लिखेंगे स्नो फ्लैग, इट मीन्स पक्षी का नाम है ये, या फिर बर्फ का टुकड़ा। ओके। थर्ड इज मेल प्लस बॉक्स। मेल मतलब जो हम मेल करते हैं, यू नो, डाक डाक जो होती है, लेटर जो होता है, या पत्र, इनको मेल कहते हैं। एंड बॉक्स, बॉक्स मीन्स डिब्बा। तो जब हम दोनों को मिला के लिखेंगे मेल बॉक्स, इट मीन्स लेटर बॉक्स, जहाँ पे हम लेटर डालते हैं, पोस्ट करते हैं। ओके। फोर्थ इज आफ्टर प्लस नून। आफ्टर मीन्स के बाद, नून मीन्स दोपहर। जब हम दोनों को साथ में मिला के लिखेंगे आफ्टरनून, इट मीन्स दोपहर के बाद। फिफ्थ इज अर्थ प्लस क्वैक। अर्थ मीन्स धरती एंड क्वैक मीन्स भूकंप या कंपन, कंपन होना। ओके। कंपन मतलब कपकपी सा होना। ओके। अब जब हम दोनों वर्ड को साथ में लिखेंगे, अर्थ क्वैक मीन्स भूकंप। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टिविटी, कलर द गिवन पिक्चर। सॉरी, मैंने यहाँ पे कलर नहीं किया है, आप लोग कर लीजिएगा। ओके। क्रेयॉन यूज़ कीजिए या पेंसिल यूज़ कीजिए, बट स्केच कलर बिल्कुल यूज़ मत कीजिएगा। सो व्हाट लास्ट, नाउ कंप्लीट द लाइंस। जब आपने कलर आपने जब कर लिया हो, उसके बाद आप जो है नीचे की जो लाइंस दी हुई हैं उसे कंप्लीट करेंगे। मैं आप फर्स्ट लाइन इज, इफ आई वर अ कैट आई वुड रन आफ्टर रैट्स। अगर मैं बिल्ली होती तो मैं चूहों के पीछे भाग रही होती। ओके। सेकेंड इज, इफ आई वर अ स्वान आई वुड लाइक टू डाइव। अगर मैं स्वान होती तो मुझे डाइव करना, पानी में डुबकी लगाना, तैरना, ये बहुत अच्छा लगता। ओह हेयर, यहाँ पे सारी एक्सरसाइजेज कंप्लीट होती हैं ये चैप्टर की। ओके। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन, हैव a nice day.